Greetings of the day, everyone. I am privileged to welcome you all in the third edition of Orange City Literature Festival, organized by SDR Knowledge Foundation in association with GH Raisoni University, powered by Raisoni Group of Institutions. I am Kanak Mahalle, a poet, podcaster, and novelist, delighted to be your anchor for today's session, Diversifying Your Reading Habit for Self Development by Mr. Nishant Jain in conversation with Mr. Naveen Chaudhary. Nishant sir grew up in a very simple background. He believed in taking his own expenses, so he decided to do some job for after 10th. You will be surprised to know that Nishant sir did not leave his job even during his 12th, graduation, and MA. After this, he decided to prepare for UPSC. He did his post graduation from the Hindi medium. That's why he also made a plan to continue the UPSC journey with the Hindi medium. It's an honor to have you with us, sir. And this gets even more delightful when we have Mr. Naveen Chaudhary, who will be in conversation with him as the moderator today. Naveen Chaudhary, sir, is the author of two political thrillers, Janta Store and Dhai Chal. He is also known as the satirist and writes for various news websites. He worked with Oxford University Press as Associate Marketing Director. Currently, he is also working on a screenplay for a web series based on his novel Janta Store. I once again welcome both of you. Before moving ahead, I would like to take a moment to acknowledge the support of Westland Publications as their association is valuable to OCLF. Now, my dear audience, you are about to experience a conversation between two very dynamic individuals. So, without skipping a moment, I humbly invite Mr. Naveen Chaudhary to lead us ahead. Thank you, Kanak. Thanks for introducing us. And it always feels good when you speak. So whenever someone is introducing us, they speak so many good things about us. Like, "Arey, wow, maza aa gaya." So thank you very much. And so guys, the best thing is today we have Mr. Nishant Jain with us. And many of you must have known about him. You must have read him. I got opportunity to meet him several times. And every time when I meet him, it is something different kind of experience. You learn from him. He's so humble, he's so down to earth, and every time he will tell you something interesting. So when we're talking about this session, we thought what should be the best thing which we where we want to provide some information through Nishant to you guys. And the session we decided was reading habits for your self and so निशांत जी सबसे पहली चीज the first thing which I want to ask you जो अभी मुझे आपके बारे में खैर बहुत सारी चीजें पता थी but when Kanak was talking about you started working very early और ये चीज जो है ना मुझे नहीं पता थी तो बाकी बातें हम बाद में करेंगे थोड़ा सा मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि ये जो आत्मनिर्भर वाला जो कंसेप्ट था ये आपने बहुत पहले से शुरू कर दिया था तो उसके उसका क्या आइडिया था क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो आपको पैसे की उस तरह से जरूरत थी लेकिन किस थॉट के साथ आपने सोचा कि अपने एक्सपेंसेस जो हैं आपको निकालने चाहिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल एंड माय फ्रेंड नवीन चौधरी जी and Miss Kanak Mahale for providing me this wonderful opportunity to interact with Naveen ji and to obviously many of our listeners would be viewers will be um, listening to us on this wonderful and amazing topic that I was wondering when we were thinking about what topic we should have, and it actually is diversifying our reading habit for self development. So we all read, we all read. That's why we all are here in this literature festival. But how do we diversify our reading habit for our own self-improvement, self-development? So we chose this topic with mutual consent. So let me come to the question that you asked. तो ऐसा कुछ नहीं है जो कनक जी बोल रही थी कि मुझे डिसाइड किया था कि खुद ही कमाना है खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट होना है और ऐसा कुछ नहीं था ज़रूरत भी थी क्योंकि आई कम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली बैकग्राउंड तो आई नीडेड सम मनी टू कि मैं अपने खर्चे खुद भी कुछ खर्च कर सकूं तो वो दोनों चीज़ें थी दूसरा एक वो भी फंडा था कि हाँ हम करेंगे मतलब कर सकते हैं कॉन्फिडेंस भी था शुरू से ही ज़्यादा तो basically I belong to a city called मेरठ which is near Delhi. So मेरठ शुरू से मशहूर है किताबों के लिए और
आपको ध्यान होगा जो पॉकेट बुक्स के लिए बड़ा मशहूर है, वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक और बहुत सारी तरह की एकेडमिक और फिक्शन, नॉन फिक्शन, हर तरह की किताबें मेरठ में शुरू से छपती रही। तो चूंकि मुझे शुरू से लिखने पढ़ने का शौक था, उस समय भी मैं लिखता था 10th क्लास जब मैंने पास की थी, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जो कभी कोई बुक छपती है, बुक सभी लोग समझते हैं कि उसकी प्रूफ रीडिंग होती है कई सारी बार, सो दैट कि कोई गलती ना रह जाए उसमें जो फाइनल वर्जन आए। तो प्रूफ रीडिंग का काम मैंने स्टार्ट किया था एक पब्लिकेशन के साथ एट द एज ऑफ 15 15 की एज में मैंने प्रूफ रीडिंग का काम स्टार्ट किया था पार्ट टाइम। और वो पार्ट टाइम वो चलता रहा हमेशा जब तक कि मैं मेरठ में रहा। तो ये फंडा था उसका। और वो एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि एक बार जो लोग इतना पढ़ते हैं, क्योंकि प्रूफ रीडिंग में आपको पूरा थोरोली उसको पढ़ते हैं आप। एक तो होता है वैसे ही रीडर पढ़ता है, प्रूफ रीडर जो होता है वो बहुत ध्यान से पढ़ता है। तो वो ध्यान से पढ़ने के दो फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ कि कंटेंट तो आपने पढ़ ही लिया। फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग सम एकेडमिक बुक और मे बी यू आर रीडिंग सम स्पिरिचुअल बुक, माइथोलॉजिकल बुक, वट एवर। तो कंटेंट तो आपने पढ़ ही लिया, तो आपकी नॉलेज बेस बढ़ रहा है, आपका आपकी नॉलेज का दायरा बढ़ रहा है। दूसरी ओर लैंग्वेज पार्ट भी इम्प्रूव हो रहा है। जब आप उसमें ग्रामेटिकल एरर्स निकाल रहे हो, उसकी एडिटिंग कर रहे हो काइंड ऑफ, तो आपका वो लैंग्वेज वोकैब और सारे स्किल्स बढ़ रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लगता है आज मुझे, जैसे इवन मैं समझता हूँ कि जो एग्जाम भी मैंने पास किया उसमें भी मेरे बहुत काम आई है वो चीज़ जो मैंने वहां पे तब सीखी थी। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15 की एज में एक्चुअली वो मिस्टेक्स निकालना, वहां पे एक वो बड़ा जोक था कि लड़के 15 की एज में नॉर्मली वो आई लव यू लिख के चिट्ठियां भेजा करते हैं, तो किसी लड़के ने हाथ पे काटा, लड़की का नाम लिखा और उसके बाद जो है वो रोने लग गया। तो दर्द हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा, स्पेलिंग गलत हो गई है। तो जिस एज में ये गलतियां होती हैं, उस एज में जो है आप प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, ये मेरे ख्याल से काफी इंस्पायरिंग है। तो ये जो आपने इसमें कहा कि प्रूफ रीडिंग के टाइम में आपको अलग अलग तरह की किताबें उसमें मिलती हैं, तो क्या ये जो डाइवर्सिफाइड रीडिंग है, या आपकी रीडिंग हैबिट पहले से थी, या ये पर्टिकुलर टाइम था जब आपका पढ़ने का इंटरेस्ट जगा और ये डाइवर्सिफाई होता चला गया? बिल्कुल सही आपने पकड़ा है एकदम कि वो डाइवर्सिफाई जो रीडिंग हैबिट हुई वो वहीं से हुई। उससे पहले तक तो स्कूल की किताबें ही पढ़ते थे, तब तो हम स्कूली बच्चे ही थे ना। तो स्कूल के बच्चे होते हैं, स्कूल की बुक्स पढ़ते हैं। और हाँ, ये जरूर है कि बचपन में हम नंदन और चंपक पढ़ते थे, और वहीं तक हमारी रीडिंग हैबिट होती थी, क्योंकि वो मैगजीन भी अपने आप में काफी सारी डाइवर्सिफाइड कंटेंट अवेलेबल कराती थी। पर वो जो एक एक तरह से यूं मान लो उसको जबरदस्ती हमने जो पढ़ा कि भाई जो वो बुक देंगे वही पढ़नी पड़ेगी ना। when you are working for some publication and you are doing proofreading, they will, जो भी बुक वो देंगे वही आपको पढ़नी है। तो उस तरह से जो उन्होंने दी वही हमें पढ़नी थी। तो इस चक्कर में उन्होंने कभी तो ओशो की भी बुक दे दी, कभी उन्होंने कोई जनरल नॉलेज की बुक भी दे दी, कभी उन्होंने कोई कविताओं की किताब दे दी, कभी उन्होंने कोई फिक्शन दे दिया, कभी उन्होंने कोई करियर पे बुक दे दी। तो सब तरह की बुक्स पढ़ी। तो उससे ये समझ में आया। वैसे भी ना हम लोग ये चीज अभी आगे भी बात करेंगे इस पे कि दुनिया जो है ना वो डाइवर्सिफाइड है, हमारी लाइफ भी डाइवर्सिफाइड है, हमारी नॉलेज भी डाइवर्सिफाइड है, तो हमारी रीडिंग हैबिट भी डाइवर्सिफाइड ही होनी चाहिए। वो तो चीज यहाँ वहां पे से मैं मिलेगी। बस एक चीज साथ में ऐड करना चाहूंगा, जो क्वेश्चन वही इसी के अंदर ऐड करना चाहूंगा, ताकि आप आंसर में उसको कहीं ऐड करें, कि जो डेफिनेशन जो हमारा सेशन है और ये डाइवर्सिफाइड रीडिंग की जो हम बात करें, बेसिकली आप इस डाइवर्सिफाइड रीडिंग को डिफाइन कैसे करें? आप ये भी अगर साथ में जोड़ सकें तो बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा लिसनर्स के लिए। तो वैसे तो आप आप भी इसका आंसर देंगे, मैं चाहूंगा कि अगर आप भी कुछ बताएं डाइवर्सिफाई रीडिंग हैबिट को कैसे आप डिफाइन करते हैं, पर मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि व्हेन वी रीड समथिंग, तो इधर वी रीड, या तो हम प्रोज पढ़ेंगे, प्रोज में आपका नॉवल हो गया या स्टोरी हो गई, या फिर आप पोइट्री में जाएंगे तो आप यू कैन रीड, तरह तरह की पोइट्री हो सकती है। अगर आप देखें तो उर्दू में गज़ल हो सकती है, नज्म हो सकती है, हिंदी में देखें तो महाकाव्य भी हो सकता है, वो एपिक भी हो सकता है, और वो कोई छोटी कविता भी हो सकती है, लंबी कविता भी हो सकती है। या अगर आप नॉन फिक्शन में जाएं तो नॉन फिक्शन में, जैसे नॉन फिक्शन की भी हम बात करेंगे आज खासकर, तो एकेडमिक बुक्स के अलावा बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ट्रैवलॉग्स हैं, एस्से है, डायरी राइटिंग है, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी की किताबें हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताबें, सेल्फ हेल्प की किताबें हैं। तो इस तरह से नॉन फिक्शन बनता है। फिर एक और चीज जो मैं कहता हूँ कि जब हम, मान लीजिए मैं एक भाषा में पढ़ता हूँ, सपोज आई रीड इन इंग्लिश,
तो मुझे इंग्लिश में क्या केवल वही किताबें पढ़नी चाहिए जो इंग्लिश में ही ओरिजिनली लिखी गई है, या फिर मुझे इंडियन लैंग्वेजेस से या फिर अदर फॉरेन लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश उनसे ट्रांसलेटेड बुक्स भी पढ़नी चाहिए? तो ये भी एक बड़ा फील्ड है ट्रांसलेशन वाला। यानी कि हमने मतलब चला कोई तमिल नॉवेल आया बहुत फेमस, उसको ज्ञानपीठ मिला, बट मेरा बैरियर है, मुझे तमिल नहीं आती, तो या तो मुझे उसको हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है। तो एक ये भी बड़ा फील्ड होता है रीडिंग हैबिट में। तो मेरे ख्याल से अगर 4 भागों में बांटूं इसको, तो फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री और ट्रांसलेशन, ये 4 मुझे लगता है मेजर 4 पार्ट हो सकते हैं रीडिंग के। और हो सकता है कि एक व्यक्ति को एक ही चीज ज्यादा पसंद हो, ये बिल्कुल नेचुरल है। मान लीजिए मुझे फिक्शन पढ़ना ही अच्छा लगता है, या मुझे तो आई एम इनटू पोएट्री, मुझे पोएट्री पढ़ना अच्छा लगता है, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट फाइंड सम टाइम टू एक्सप्लोर सम न्यू जोनर, और थोड़ा सा उसको भी करके देखें ट्राई। हो सकता है कि जब आप वो पढ़ना शुरू करें तो आपको उसमें भी मजा आने लग जाए। तो माई पॉइंट इज कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके बाद जहां आपको ज्यादा अच्छा लगे उसको ही ज्यादा करना चाहिए, पर करना सबको चाहिए, ये मेरा मतलब मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। मतलब यही चीज जो है, मैं डाइवर्सिफाइड को भी इसी तरह मैं नॉर्मली सब्जेक्ट के बारे में उसको लेता हूँ। मैं आपने चारों कैटेगरी में उसको डिवाइड किया, मैं कैटेगरी की तरफ कम, लेकिन मैं सब्जेक्ट के हिसाब से जरूर कोशिश करता हूँ डाइवर्सिफाई करने। तो मेरा इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में काफी है, और या जो पॉलिटिकल, तो कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ या किसी नेता की बायोग्राफी हुई, मैं उन चीजों को पढ़ना, लेकिन उससे रिलेटेड फिक्शन भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, या वैसे ही न्यूज। तो मैं सब्जेक्ट को, लेकिन मुझे लगता है कि फिर सिर्फ पॉलिटिक्स ही क्यों, क्या मैं प्रेम कहानी नहीं पढ़ सकता, क्या मैं मोटिवेशन नहीं पढ़ सकता? क्योंकि ये फिर एक सब्जेक्ट में तो मेरा इंटरेस्ट इंक्रीज जो है, उसमें नॉलेज इंक्रीज हो रही है, लेकिन तकता जा रहा है। तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए भी यही है कि जितनी ज्यादा चीजों को मैं पढ़ सकूं, सब्जेक्ट्स को पढ़ सकूं, हाँ, उसमें एक सब्जेक्ट को ज्यादा इंटरेस्ट का अपना हो है। हाँ, एक को ज्यादा तो नेचुरली इट्स बाउंड टू हैपन। जो कोई एक आपको ज्यादा पसंद है, सपोज यू लाइक पॉलिटिकल नॉवेल्स, तो आपको वो ज्यादा पसंद आएंगे ही और आपको करना ही चाहिए, ताकि आप उस पे एक मतलब एक तरह से जब कभी पॉलिटिकल नॉवेल की बात हो तो आपको नवीन चौधरी जी को बुलाना ही पड़े, इस तरह का एक्सपर्टीज होना चाहिए। लेकिन वो दूसरे जोनर्स को भी फॉर फन, फॉर उसकी मतलब एक जरूरत। तरह से रिक्रिएशन के लिए यूज करना चाहिए थोड़ा। तो एक आपने मतलब वो बचपन याद दिला दिया नंदन चंपक की बात करके। और नंदन चंपक के साथ साथ मुझे एक, ये तो खैर बच्चों के लिए था, एक उसी समय में युग भी आया करता था, बड़ा पॉपुलर था, वो साहित्यिक मैगजीन था। तो उस समय जो है कुछ न्यूज़पेपर्स ने काफी साहित्य को और बच्चों की रीडिंग हैबिट्स को, मुझे लगता है कि वो एक तरह से देखा जा रहा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी, कि वो रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है। अब धीरे धीरे वो सारी मैगजीन्स बंद हो गई। कॉमिक्स अभी भी कुछ एक चलती हैं, लेकिन आजकल जो कॉमिक्स हैं वो उस तरह की नहीं है जैसा नंदन और इसका मैं देखता हूँ, जो हमारे समय में जिस तरह की स्टोरीज होती, ये काफी डिफरेंट है। मांगा आजकल बच्चों में बड़ा पॉपुलर है, या हो सकता है कुछ और भी आ गया हो, ये तो मैं 4 साल पहले बता रहा हूँ, चीजें चेंज हो रही है। एट द सेम टाइम जो दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है वो है इंटरनेट। सो बच्चों को जो है वो हमने बचपन से ही क्या किया है कि जब वो रोने लगते हैं तो गेम खेल मोबाइल पे जो देख लो, तो वो बच्चों को हमने हैबिचुअल उसके लिए बना दिया है। और ये कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट को मुझे जी, लगता है कि समस्या है, और इसके ऊपर सब लोग कहीं बात तो करते हैं, लेकिन आपके व्यू पॉइंट से मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो रीडिंग हैबिट बनने में एक बचपन से जब पढ़ने की आदत पड़ जाए वो बहुत हेल्पफुल होती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स को, या आपके हिसाब से क्या बेस्ट तरीका है बच्चों को, क्योंकि इंटरनेट सारी डिस्ट्रक्शन है, उसको छोड़ के पढ़ने में उसका इंटरेस्ट आना शुरू हो ये बहुत अच्छा सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सब लोग बात करते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं कंसर्न रहते हैं इस बात को लेके कि वी आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इंटरनेट, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट हो क्या रहा है कि उस चक्कर में हमारी वी आर डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रीडिंग हैबिट, विच शुड नॉट बी द केस एट एनी कॉस्ट। तो हमारे साथ तो अच्छा ये हुआ कि अ, हमारी एज के जो लोग हैं, आप हैं या और हमसे जो बड़ी एज के लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ तो ये अच्छा हुआ कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनके टाइम में ये सब था ही नहीं, इतना इंटरनेट था ही नहीं, ना इतना डेटा होता था। और बहुत ही इवन जब तो उस समय सुनने के भी पैसे लगते थे इनकमिंग कॉल के, तो इंटरनेट तो भूल ही जाओ, मोबाइल इंटरनेट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया था तब धीरे धीरे इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया था। तो वो चीज़ थी। लेकिन अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज इस सेंस में है कि इंफॉर्मेशन की रिवॉल्यूशन का ज़माना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई बार यूपीएससी के भी सेशन अटेंड करता हूँ, तो कई बार लोग ये पूछते हैं भाई, समस्या ये है कि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, इतना सारा एक विस्फोट हो गया है पूरा इंटरनेट पे कि समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़े और क्या छोड़ें, क्या ना पढ़े। तो वो वाली चीज हो गई है।
इसी तरह से मनोरंजन में हुआ, एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी सेम प्रॉब्लम है। आप यूट्यूब पे क्या देखें, क्या चुनें, वो फिर जो आप देखने लगे वही वो एआई से बार-बार दिखाया जा रहा है। तो डाइवर्सिफ़ाई वो होने नहीं दे रहा आपकी हॉबीज़ को। मान लीजिए आपने गलती से कभी किसी एक कोई सेल्फ हेल्प का वीडियो देख लिया, तो वो आपको सेल्फ हेल्प ही दिखाया जा रहा है। फिर आपको म्यूज़िक नहीं दिखाएगा, फिर आपको बॉलीवुड नहीं दिखाएगा। तो ये भी एक समस्या हो गई। फिर इसी तरह से यूट्यूब ही क्यों, इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही हैं, जो पहले टिकटॉक आता था, तो वो चीज़ चल रही है। फेसबुक वॉच भी, फेसबुक वीडियोज़ भी हैं, ट्विटर पे भी छोटे-छोटे वीडियोज़ आते हैं। तो ऐसे करके मतलब टाइम कब बीत जाएगा पूरा दिन आपको पता नहीं चलेगा, बैठे-बैठे या लेटे-लेटे ही। तो ये एक चीज़ हो गई है। अब इसको कैसे समाधान करें? क्योंकि अब तो इसका एक लाइन में बोलूँ तो वी हैव टू फाइंड सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। कई लोग ऐसा बोलेंगे जो एकदम थोड़े अथॉरिटेटिव टाइप के लोग होंगे कि भई बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें इंटरनेट यूज़ ही नहीं करने देंगे, बच्चे को। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे तो ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि वो कोई बच्चा जो है वो आपका गुलाम तो है नहीं, वो फिर उसको छुप-छुप के करेगा, है ना? तो उससे उससे वो आई थिंक और भी बेकार है। जैसे इसमें तो मैं अभी नवीन जी से भी पूछना चाहूँगा, आगे वो बताएँगे, क्योंकि उनका एक बहुत ही प्यारा-सा बेटा है आर्यदित्य, मैं भी मिला हूँ उससे और वो कैसे पेरेंटिंग करते हैं, कैसे उसमें रीडिंग हैबिट डेवलप करते हैं, कैसे वो उससे बातें करते हैं, कैसे वो उसके मन की बातें खुलकर सुनते हैं, खुलकर बातें करते हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि उनको बताना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप ऐसे एक थोप देंगे उसके ऊपर कि नहीं भाई इंटरनेट यूज नहीं करने देंगे तुमको, तो फिर वो नहीं बैठेगा। यू हैव टू फाइंड सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि भाई इस एज में इतने घंटे आपको यूज करना है, जो हम भी करते हैं, मेरा भतीजा भी है। हम लोग यही करते हैं कि भाई आपको 2 घंटे मिलेंगे पूरे दिन के। अब 2 घंटे में आप आधे आधे घंटे 4 बार देख लो, एक एक घंटे करके 2 बार देख लो, या 2 घंटे 1 बार देख लो, बट यही आपको मिलेगा। तो वी हैव टू इम्पोज सम रेस्ट्रिक्शन एमिकेबली ऑन द चिल्ड्रन, बिकॉज बाद में आप ये नहीं कह सकते कि साहब बच्चे को तो जैसे करना था हमने करने दिया, और उसको उस समय नहीं पता कि उसके लिए बेस्ट क्या है। थोड़ा सा आपको पेरेंटिंग का यही मतलब है कि आप सही समय पे उसको सही चीज बताएं। अच्छा, ये मुझे लगता है कि सिर्फ लिमिटेशन बच्चे के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। मैं कई बार सुबह उठता हूँ, सोचता हूँ कि आज ना मैं अब गया हूँ और 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा, तो चलो अगले 1 घंटे में मोबाइल पे ही देख रहा हूँ बेड पे लेटा। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इसकी जरूरत है। लेकिन निशान जी जब बात कर रहे थे कि बच्चों को पढ़ाने का, तो मेरा जो अपना अनुभव, ये मेरे लिए भी चैलेंज था, क्योंकि हमने भी वो गलती हमने भी की कि अच्छा, मान नहीं रहा, कोई दोस्त आया है, हम बात कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फिर मोबाइल पकड़। ये काम मैंने भी गलती की, लेकिन मैंने उस गलती को बहुत जल्दी सुधारने की कोशिश की। जो एक चीज है, हर बच्चा अलग होता है, तो एक तरीका तो खैर सब पे नहीं चल सकता, लेकिन मुझे ये चीज बड़ी समझ में आई कि कुछ भी देख के आता है तो इसके बारे में पूछते जरूर थे, अच्छा देखा क्या इंटरनेट पे, ये तो बताओ। वो जब कोई भी बात बताता है, तो जो हमने किताबें पढ़ी, हमने जो कहानियां पढ़ी, मैं अक्सर उससे जुड़ी हुई कोई कहानी उसको बता देता हूँ कि यार ऐसा है, उसकी मम्मी भी यही करती है। तो उसको अचानक क्यूरियोसिटी और होती है कि इसके बारे में और बताओ। तो फिर और बताओ, मैं उसको कोई बुक ला के दी, देखो इस बुक में ये वाले पिक्चर्स हैं, इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, कैसे है देखिए आप। तो वहां से जो उसका वो इंटरेस्ट आया कि कुछ चीजें तो वो इंटरनेट से ले रहा है, इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा सोर्स है आपकी नॉलेज के लिए। साथ ही साथ उसको समझ में आया कि अच्छा, ये सब्जेक्ट में बुक पढ़ूंगा तो उसमें यही चीज मुझे मिलेगी, तो एक इंटरेस्ट आता है, फिर वो ढूंढता है कि कौन सी बुक है। और बड़ा इंटरेस्टिंगली जो है, अभी कुछ दिनों पहले मैं उसको टीवी दिखा रहा था, वो मालगुडी डेज हमारे बचपन का, और कल ही ये किताब जो है ऑर्डर हुई, कल ही घर आई है ये किताब। तो उसने जो है वो किताब इसी तरह से मंगाई। तो मुझे लगता है कि वो आप बच्चों को अगर आइडेंटिफाई कर लें ऐसा है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन बच्चे के साथ में मुझे अब किशोरावस्था अपने निशान जी याद आ रही है कि ये मेरे साथ तो हुआ है, पिताजी बड़े सुन के नाराज हो जाए, और बहुतों के साथ हुआ होगा कि हम लोगों को करिकुलम पढ़ने का बहुत ज्यादा प्रेशर, और करिकुलम पढ़ने के प्रेशर में जो है कुछ और चीज अगर हम उठा के पढ़ते हैं तो पेरेंट्स का, और पेरेंट्स से ज्यादा वो हमेशा आसपास जो भी देखता है पढ़ता है, बच्चा तो बिगड़ गया, नॉवल पढ़ रहा है, कॉमिक्स पढ़ रहा है। तो ये जो, लेकिन एडिशनल रीडिंग जो है वही पर्सनैलिटी डेवलप करती है। आपकी जो बुक है रुक जाना नहीं, उसको जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें भी आपने मेंशन किया हुआ है बहुत सारी और रीडिंग्स के बारे में। तो ये जो है करिकुलम के टाइम में जब बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर है कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, वहां पे कुछ और चीजें पढ़ना, एक तरफ से गिल्ट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, दूसरी तरफ है कि उसकी नॉलेज नहीं पड़ती। उस चीज को आपने कैसे मैनेज किया था जिस टाइम में आप प्रिपरेशन कर? देखिए ऐसा है कि हमेशा करिकुलम के साथ, चाहे चाइल्डहुड हो चाहे बड़े हो रहे हो, किशोरावस्था हो,
तो कुछ ना कुछ तो एक टेक्स्ट बुक से अलग चलना चाहिए हमेशा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कह रहे थे कि मैंने मालगुडी डेज का बच्चे को बताया और उसने बुक ऑर्डर कर दी। तो जिस तरह से मैं रीडिंग हैबिट की बात जब कर रहा था तो मैं कह रहा था कि भाई भले ही मुझे कोई पर्टिकुलर जोनर अच्छा लगता हो पर मुझे दूसरा जोनर एक्सप्लोर करके तो देखना चाहिए ना। हो सकता है वो भी अच्छा लगने लगे। इसी तरह से बच्चे के साथ होता है। बच्चा उसे खुद नहीं पता क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अगर एक बार लाके दोगे उसको टेस्ट कराओ, टेस्ट करने के बाद डिसाइड करो कि अच्छा है या नहीं। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरा जो नेफ्यू है वो भी अराउंड 10-12 साल का है और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में नॉवेल्स पढ़ लेता है, चाइल्ड नॉवेल्स, चिल्ड्रन नॉवेल्स जो होता है। तो ये चीज़ है कि उसको लाके दिया हमने तो उसको अच्छा लगा, उसको मज़ा आ रहा है और वो अब कह रहा है कि इसकी अगली सीरीज मंगाओ। तो ये हमको करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि जो आपका एग्जैक्टली सवाल था कि भाई आपने कैसे किया, खासकर तब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर। तो इसका मेरे ख्याल से जवाब ये रहेगा कि स्कूल डेज में और कॉलेज डेज में तो इनवेरिएबली टेक्स्ट बुक के साथ साथ कुछ रीडिंग होनी चाहिए जो टेक्स्ट बुक से अलग हो। पर अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ड्यूरिंग सम सर्टेन पीरियड, लाइक फॉर एग्जाम्पल 12th के बाद आपने एक ड्रॉप ईयर लिया और आप IIT जी की तैयारी कर रहे हो, तो उस समय मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है, इतना 1-1.5 साल का पूरा कोचिंग भी है और उसका पूरा टेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी है और पूरा एक असाइनमेंट मिलता है। तो उस समय यू कैन अवॉइड, उस समय आई थिंक मैं नहीं कहूँगा कि उस समय यू हैव टू बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जाम बिकॉज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। कोई भी एग्जाम IIT जी हो, चाहे नीट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे UPSC हो, चाहे क्लैट हो, कैट हो, जो भी एग्जाम है उन सब में एक बार फोकस होना पड़ता है। ऐसे ही मान लो आप ग्रेजुएशन के बाद UPSC की तैयारी कर रहे हो और 2 साल 1-1.5 साल UPSC में, तो फिर अगेन इट्स अ डाइवर्सिफाइड थिंग बिकॉज UPSC का सिलेबस बहुत डाइवर्सिफाइड होता है। तो वहां तो फिर भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। बट अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CA, फॉर IIT, तो आपको फिर उस समय फोकस्ड होना पड़ता है और उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको जो टेक्स्ट है, जो उसकी सिलेबस है, उस पर ही फोकस करना पड़ता है। हाँ, मेरी जो ये दोनों किताबें हैं, जैसे आप रुक जाना नहीं का नाम ले रहे थे, तो जो हिंदी वाले हैं वो कम से कम ये कि उस समय मोटिवेट कैसे रहें, क्योंकि ऐसी किताबें तो मार्केट में हैं बहुत सारी जो सेल्फ हेल्प है, पर स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए ऐसी किताबें कम है। इंग्लिश में भी अवेलेबल है ये डोंट यू क्विट के नाम से, डोंट यू क्विट द मैजिक ऑफ अंटायरिंग एफर्ट्स। तो ये है कि बस ये वंस इन अ वाइल, मतलब पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो आपको फोकस होना ही पड़ेगा, उसमें आप बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहता आपके पास कि आप अलग किताबें भी पढ़ पाए। अच्छा, तो मेरे आप एक किताब से जुड़े अब दो सवाल हैं, क्योंकि ये सवाल मैं पूछना जरूर था मुझे बाद में, लेकिन किताब देख के मुझे सवाल लगा कि मैं अभी पूछना चाहिए। मोटिवेशनल किताब है और चूंकि मैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री से भी जुड़ा रहा हूँ, तो मार्केट बड़ा होता है और प्राइमरीली क्या होता है, इसका हिंदी की जगह अंग्रेजी में हम मार्केट बड़ा मानते हैं। हिंदी का फिर ट्रांसलेशन हिंदी जो है, इंग्लिश की पॉपुलर किताबें उसको हम बाद में हिंदी में ट्रांसलेट। आपके केस में आपने पहले उसको हिंदी में लिखा है और फिर बाद में उसको ट्रांसलेट किया, तो ये थॉट आपको नहीं आया कि यार इंग्लिश में लिख देते मार्केट बड़ा रहेगा, हिंदी तो ट्रांसलेट हो ही जाती है बाद में। तो ऐसा भी हो सकता था, लेकिन आपने तो उल्टा लिया है, जबकि कई बार हिंदी को उधर से ट्रांसलेट होने में दिक्कत आती है। एक्चुअली आपने जो बोला ना, आई एम यू आर राइट, आई एम मोर और लेस कंफर्टेबल विद बोथ द लैंग्वेजेस, बट हमेशा आप ध्यान, मुझे लगता है ऐसा हमेशा हर व्यक्ति की, जो कई सारी भाषाएं, इंडिया में हर आदमी 2 भाषाएं तो जानते हैं, कई लोग 3-3 भाषाएं भी जानते हैं। तो जैसे अब जो हम मैडम है कनक जी, वो मराठी भी जानती है मुझे ऐसा लगता है। तो आप हिंदी भी, इंग्लिश भी और मराठी भी तीनों भाषाएं जानती हैं। पर अगर आपसे ये हाँ, कहा तीनों जाए, भाषाएं। है ना, अगर आपसे ये कहा जाए इन तीनों भाषाओं में से रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों स्किल्स को मिला के अगर देखें तो कौन सी भाषा ऐसी है जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो हो सकता है आप मराठी बोले, या हो सकता है आप अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। तो मेरे केस में क्या है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दोनों में से किस में आप ज्यादा, क्योंकि मैं हिंदी में कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हूँ और राइटिंग इज अ स्किल जिसमें लिखना उसी भाषा में चाहिए जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल हो और बहुत अच्छा आपका वोकैब हो, अच्छी पकड़ हो, अच्छी कमांड हो। तो मुझे लगता है कि मैं ओरिजिनली, अभी तो यही लगता है मुझे कि मैं ओरिजिनली हिंदी में लिखूं और बाद में भले उसका इंग्लिश में, मराठी में या जिस चाहे भाषा में ट्रांसलेशन हो। तो वही इस केस में भी हुआ। पहले आइडिया था भी नहीं कि इंग्लिश में आएगी, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था।
सिर्फ पहले हिंदी में ही लिखना था, हिंदी में ही लिखने की साथ सोचा था, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। रुक जाना नहीं किताब आई और बहुत बिकी, बहुत चर्चा हुई, बहुत सारे लोगों के पास पहुंची, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं उसको कि भाई जब कभी परेशान हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तो ये किताब का कोई पार्ट पढ़ लेंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है, और बहुत सारे फीडबैक, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे अमेजोन पे रिव्यूज, 1000 रिव्यूज हो चुके हैं इस किताब के अभी तक। तो वो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। फिर कई सारे लोगों ने कहा कि भाई रुक जाना नहीं है, हम लोग तो पढ़ नहीं पाते, इंग्लिश में इसको लाइए। तो फिर इंग्लिश में आई, इंग्लिश में भी पिकअप कर रही है, और मुझे लगता है कि आई वुड रिक्वेस्ट वेस्टलैंड की मराठी में भी इसको लॉन्च करें, क्योंकि मराठी में भी इस तरह के रीडर बहुत है। बहुत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और मोटिवेशन की जरूरत तो मुझे लगता है कि मराठी क्या है, सभी भाषाओं में मोटिवेशन की जरूरत है। तो इस किताब को चूंकि मैंने भी पढ़ा हुआ है, मैंने हिंदी वाला वर्जन पढ़ा हुआ है, और मतलब इस एज में आके भी लगता है कि यार हाँ, काफी चीजें हैं जो कि आप इस टाइम भी सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा। मेरा भांजा अभी उसने 12th का एग्जाम दिया था, तो 12th का एग्जाम होने के बाद मैंने यही किताब उसको गिफ्ट की थी। मैंने कहा अब ये चीज है क्या जो आपको बात। पढ़नी है अगले 3 साल ग्रेजुएशन में, यही से आप गाइडेंस लेके और अपना आगे का रास्ता। लेकिन एट द सेम टाइम एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट कि सबकी तैयारी की स्ट्रेटेजी अलग अलग है, और मोटिवेशनल बुक्स जो है वो ऑब्वियसली ऑथर का एक अपना व्यू पॉइंट होता है, ऑथर के अपने आसपास के एक्सपीरियंस होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई मोटिवेशनल बुक्स हेल्प करेंगी किसी रीडर को? क्या बड़ा उसको अच्छा सवाल एज है। फॉलो करना चाहिए, या उसको वहां से पॉइंट पिक करके एक स्ट्रेटेजी अपनी बनानी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी के ऊपर भी मेरी बुक्स चलती है, स्ट्रैटेजी के ऊपर। जी। तो हिंदी में लिखा था मैंने, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, और इंग्लिश में फिर वो आई बाद में, ऑल अबाउट यूपीएससी के नाम से। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर मैं आज यूट्यूब खोलूं और मैं देखूं कि भाई आईएएस बनना है, तो इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स के, आईपीएस ऑफिसर्स के इंटरव्यू मिल जाएंगे। सबकी अपनी स्ट्रेटेजी और सबकी अलग अलग होती है, बहुत मतलब कुछ चीज़ें तो सेम होती है, पर काफ़ी चीज़ें अलग भी होती है। इसी तरह सेल्फ हेल्प का बाजार है। मान लो आप सेल्फ हेल्प में जाओ, तो आपने चाहे बुक्स में जाए चाहे वीडियोस में जाओ, दोनों ही तरह से बहुत सारे तरह के आपको विचार, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। तो कैसे करें, क्या करें, तो उसमें ये बहुत थोड़ा सावधानी वाली बात है यहाँ पे। यहाँ पे ये सावधानी बरतनी होगी कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आपको उसके विचार सुन लिए, आपने पढ़ लिए। सेम पहले जमाने में जब शास्त्रार्थ होते थे, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स होते थे, तब भी तो यही होता था कि आप ये थोड़ी ना कि किसी के आपने आर्ग्यूमेंट सुने और एकदम से उसको फॉलो कर लिया। तो एक चीज ये भी होती है, इसका फायदा, जब अलग अलग व्यू पॉइंट सुनते हो ना, इसका एक मैं साइड बेनिफिट बता रहा हूँ आपको। आप कंफ्यूज तो होते हो, दैट इज फाइन, बट कंफ्यूज होने के साथ साथ आपको ये भी रियलाइज होने लगता है कि बहुत सारे व्यूज होते हैं हर बात के। जरूरी नहीं कि कोई एक व्यू पूरी तरह ठीक हो, कोई एक व्यू पूरी तरह गलत हो। तो दैट्स हाउ यू बिकम मोर एकोमोडेटिव, मोर रिस्पेक्टफुल टू अदर्स व्यूज। ये इसका फायदा भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट सुनने में, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। बस किसी एक को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, जो जितना अच्छा लगे उसको उतना ही फॉलो करना है। ये एक बात मैं अपनी बुक में भी बहुत लिखता हूँ इस बात को। मैंने इनफैक्ट अपनी बुक में भी ये बात काफी कही है कि भाई आप अपने को डाइवर्सिफाई रखो, अपनी रीडिंग हैबिट को। रीडिंग हैबिट का मतलब यहाँ पे रीडिंग हैबिट ही नहीं है, अगर आप इंटरनेट भी कंज्यूम करते हो तो उसको भी डाइवर्सिफाई करो। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का वीडियो देखे जा रहे हो। तो अगर इस तरह करें, तो किसी एक को ब्लाइंडली फॉलो ना करके सबको देखें, और फिर जो जितना ठीक लगे अपने हिसाब से, आपने एक वर्ड यूज किया कस्टमाइज, तो कस्टमाइज स्ट्रेटेजी बनाए। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अलग है, आपके वीक पॉइंट्स अलग हैं। हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ पता है, हर किसी को अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। उस हिसाब से अपनी कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ये जो डाइवर्सिफाइड की हम बात कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड रीडिंग की, शुरू में ही खैर इस बारे में बात की थी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात हो, लेकिन फिर भी अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टूडेंट्स के साथ जब भी वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, मैं एग्जाम को ज्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम का एक वो पढ़ाई से ज्यादा कनेक्शन है। वहां पे पर्सनैलिटी अपने आप में एक एस्पेक्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज अपने आप में एस्पेक्ट है, और ऐसे में हो सकता है कि आपको जो है सिडनी शेल्डन की किताबें पसंद आ जाए, जो कि आपको कहीं हेल्प नहीं। तो एज समवन जिन्होंने कि ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करके आप सर्विस में हैं, आपने बहुत पढ़ा है, बुक्स भी लिखी हैं,
तो क्या ऐसे कुछ एक सब्जेक्ट एरियाज जरूर हैं जो कि हर स्टूडेंट को जो ये चाहता है कि मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात नहीं करता हूँ, किसी भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, ये कुछ एक विषय है जो कि उनको जरूर पढ़ना ही चाहिए, उनकी रीडिंग वहां पे डाइवर्सिफाई होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, वाह। ये एक्चुअली बहुत यूटिलिटी वाला सवाल है। अगर ये इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा, एक्चुअली कुछ आप भी प्लीज इसमें ऐड कीजिएगा। पर मेरे हिसाब से आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो या ना करनी हो, तब भी आपको कोई एक बुक हिस्ट्री के ऊपर जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री पता चले इंडिया की, थोड़ी मिडिएवल और थोड़ी मॉडर्न, और जिसमें थोड़ा सा आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में भी पता चले कि उसके वैल्यूज क्या थे, क्या वो चीज़ थी जिसकी वजह से ये हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो डटे हुए थे कि हमें आज़ादी चाहिए। अभी तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, 75 साल हो रहे हैं आज़ादी। जी। दूसरी चीज, मतलब एक तो हिस्ट्री वाला पॉइंट हो गया, एक हमको कुछ हो सके तो थोड़ा कुछ बेसिक सोशियोलॉजी, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कास्ट का क्या इंस्टीट्यूशन है, इसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा हमको बेसिक पॉलिटी जरूर पता होनी चाहिए। बेसिक पॉलिटी में आपको पता हो कि लोकसभा राज्यसभा का क्या रोल है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, फिर लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिक हर जगह आपके काम आएंगी और आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाएंगी, रादर देन एक जिसको कुछ पता ही नहीं है। तो थोड़ा बेसिक पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इन्वायरमेंट की होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और थोड़ा कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर की एक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें मैं बोला था, कोइंसिडेंटली ये सारी चीज़ें ही यूपीएससी के सिलेबस में भी होती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि अगर यूपीएससी में अगर आप पास ना भी हो पाओ और मान लो फेल भी हो जाओ, तो भी आपने 1 1.5 साल जो लगाया वो कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि यू गेट टू नो सो मैनी थिंग्स अबाउट सो मैनी वेरियस, मतलब डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स, कि आपको वो लाइफ लॉन्ग काम आते हैं। ये हुई बात थोड़ा सा नॉलेज वाली। पर अगर उसके अलावा आप देखें तो आप हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखें, कुछ ऐसी बुक्स आप भी सजेस्ट करें नवीन जी, जो हिंदी में और इंग्लिश में बेसिक फिक्शन और नॉन फिक्शन में जो किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे मैं हिंदी के लिए अगर बताऊं तो हिंदी में आप एक प्रेमचंद के कुछ नॉवेल पढ़ने चाहिए, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी पढ़ लेना चाहिए, कुछ मोहन राकेश का नाटक पढ़ लेना चाहिए, कुछ कविताओं में देखें तो निराला और नागार्जुन की कविताएं आपको पढ़ लेनी चाहिए। इस तरह से कुछ बेसिक बेसिक चीजें आप, एक लिस्टिंग करी जा सकती है ऐसी किताबों की। सेम इंग्लिश में किया जा सकता है, सेम मराठी में किया जा सकता है। पर मुझे लगता है कि कुछ दोनों का, फिक्शन और नॉन फिक्शन का अच्छा एक छोटा सा कॉम्बो बनाना चाहिए। और हर आदमी को, हर यंगस्टर को लाइफ में कम से कम ये सोचना चाहिए कि साल में 10 किताबें तो मैं पढ़ी। यहाँ पे जो आपने हिस्ट्री की बात कही, मेरा जो अभी जो नॉवेल आया उसमें एक करेक्टर ज्ञान दे रहा है, और ये नेता है, ये ज्ञान दे रहे हैं कि जिस जगह से तुम्हें चुनाव लड़ना है वहां का इतिहास जानो, क्योंकि इतिहास जो है वर्तमान में राज करने का तरीका सिखाता है, उसका ये कहना है। तो इतिहास जो है हमेशा सिखा रहा है, जो निशांत जी कह रहे थे। और सारे सब्जेक्ट्स जो उन्होंने कहा उसमें कहीं भी कोई वो नहीं है। जो मैं सिर्फ एक चीज जिसमें एड ऑन करना चाहूंगा कि जो फिक्शन और नॉन फिक्शन क्या बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अगर मुझे तैयारी करनी होती है, हालांकि मैंने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए नहीं, लेकिन अगर मुझे तैयारी को छोड़ दीजिए, मुझे अभी भी जब अपनी सोसाइटी को जानना हो, मैं एक एकेडमिक प्रेस के साथ काम किया है, तो मैं नॉर्मली इन सारे सब्जेक्ट के ही ऑथर्स के साथ और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू सब चीजों को, एकेडमिक वे में थ्योरेटिकल सोसाइटी क्या है, सोशियोलॉजी के थ्रू आप जानते हैं, पॉलिटिक्स को जानते हैं, लेकिन जब मैं प्रेमचंद को पढ़ता हूँ तो मुझे उस समय का समाज नजर आता है। तो सोशियोलॉजी में मैंने बिल्कुल थ्योरी सही। पढ़ी थी, वो प्रैक्टिकलिटी मुझे वहां नजर आनी शुरू। सिमिलरली आप पॉलिटिक्स की बात करें तो जब आप ऐसी किताबें, पुरानी राग दरबारी को आप जब पढ़ेंगे तो वो सटायर है, लेकिन वो पॉलिटिकल सटायर है। तो वो जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल एज जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो आपको नॉन फिक्शन फिक्शन के बीच में मिलेगा। और वही राइटर्स को आपको, अगर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, यही राइटर्स भी आप आइडेंटिफाई करें जिनका सब्जेक्ट जो है इन सब चीजों के अराउंड है, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, रिलीजन, इनके अराउंड उन्होंने लिखा है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर, रिटन एग्जाम एक हो गया, इंटरव्यू के अंदर जब आपसे बात की जाए और समय पे अगर आपसे किसी टॉपिक पर डिस्कशन हो जाए, मुझे लगता है कि ये पढ़ा हुआ और जो कंपैरिजन कि प्रेमचंद के समय होरी जो था, क्या वो होरी आज भी है या नहीं है, या होरी की सिचुएशन समाज में चेंज कितनी,
ये मुझे लगता है कि किताबें ही आपको देंगी। बिल्कुल और सही बात है, बिल्कुल सही बात। और नॉन फिक्शन शायद ये बताएगा कि मोहरी आज भी ऐसा क्यों है। क्या बात है, बिल्कुल सही है। वो वाली चीज जो है मुझे लगता है कि आई थिंक इस पे हम लोग काफी एग्री करते हैं कि वो चीजों। अच्छा निशान जी, जब आप क्वेश्चन राइटिंग पे आते हैं, मैं तो खैर जो लिखता हूँ सारा फिक्शन है, हालांकि सत्य घटनाओं पे है लेकिन फिक्शन है घूम फिर के वो। आपने जो किताब लिखी है मोटिवेशनल है, नॉन फिक्शन कैटेगरी है, तो ये कितना डिफरेंट आपको लगता है कि नॉन फिक्शन को लिखना, स्पेशली उस युवा वर्ग के लिए जिसके बारे में हमने इतनी देर से बात की, कि उसके एक तो उसके पास डिस्ट्रक्शन बहुत है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत सारे हैं, और उसका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है। ऐसे में जब एक राइटर लिखता है, ऑब्वियसली जब आप लिख रहे थे ये सोचते हैं कि रहेगा, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नॉन फिक्शन लिखना कितना कठिन है और आप क्या ध्यान रखते बहुत अच्छा पूछा आपने एक्चुअली। तो मैंने कभी इतना सोचा नहीं हालांकि, क्योंकि हैं? जी फिक्शन मैंने कभी लिखा नहीं, और मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं लिखूं। कभी कुछ लघु कथा जरूर मैंने लिखी थी, पर मैंने कभी अटेम्प्ट भी नहीं किया फिक्शन लिखने का, और कभी ऐसा मूड भी नहीं हुआ। जबरदस्ती मैंने बैठ के लिखा नहीं। कविताएं जरूर मैंने लिखी हैं बचपन से, कविताओं में मेरी रुचि थी। नॉन फिक्शन लिखते हुए जो परेशानी है या जो कठिनाई है वो ये है कि देखिए, आज का जमाना इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का जमाना है, और सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे भी। तो कोई आपका नॉन फिक्शन में बेसिकली क्या है, नॉन फिक्शन में कहानी नहीं है। और हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरह कि जो लिटरेचर की जो सबसे ओल्ड जॉनर्स हैं, आदिम विधाएं हैं, वो तीन हैं: गीत, नाटक और कहानी। आदिकाल से लेकर के आज तक कोई ना कोई लोकगीत, फोक म्यूजिक चलता रहा है, कोई ना कोई कहानियां सुनाई जाती रही हैं कबीले में, गांव में, कस्बे में, और कोई ना कोई प्ले, ड्रामा, नाटक, रंगमंच होता रहा है। तो अब इसमें कहानी है नहीं, ये तीनों विधाएं हैं जो आपको खींचती हैं। जैसा आप कोई प्ले देखते हो तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, कोई गाना सुनते हो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, कोई स्टोरी सुनते हो तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। नॉन फिक्शन में रीडर को इन्वॉल्व करके रखना, उसको एक तरह से बांध के रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई आप जो ज्ञान दे रहे हो इस नॉन फिक्शन में, वो कोई क्यों पढ़ेगा जब तक कि उसमें कुछ नया नहीं होगा, कुछ खास नहीं होगा, कुछ ऐसी बात नहीं होगी जो आ, बड़ी बात आपने साधारण शब्दों में कहती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो क्यों पढ़ेगा। या फिर कोई ऐसी चीज जो आपने बहुत सारी, कोई डिफिकल्ट ज्ञान था, आपने उसको सिंप्लीफाई करके अगर पेश नहीं किया है तो कोई क्यों पढ़ेगा। तो नॉन फिक्शन का ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि नॉन फिक्शन में उसका इंटरेस्ट बनाए रखना रीडर का, वो बहुत टफ काम है। चाहे वो ट्रेवलॉग हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, चाहे वो कोई एकेडमिक बुक हो, अगर आप उसमें जरा भी आप ने कोई हल्का या आप उसने स्टैंडर्ड से गिरे तो आपको तुरंत वो बुक पसंद नहीं की जाएगी। कहानी में, हालांकि फिक्शन लिखना इज अगेन वेरी टफ। अगर इजी होता तो मैं ही लिख लेता, तो फिक्शन तो मुझे लगता है हमेशा की ज़्यादा टफ है। पर फिक्शन में फिर भी एक ये फायदा तो है ही कि कहानी के साथ साथ पाठक चलता है। बट नॉन फिक्शन में कहानी नहीं है, उसको बांधने और पिरोए कैसे, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज तो ऐसी कोई तीन चीजें जो, तीन क्या दो या पांच आपको जितनी भी लगे, जो आप हमेशा ध्यान रखते हैं कुछ भी लिखते हैं? है। ओके, मैं मैं तो एक ही बात ध्यान रखता हूँ लिखते हुए, बाकी और जी सोचूंगा, लेकिन एक बात तो हमेशा ध्यान रखता हूँ कि लिखते हुए नहीं, मैं तो हर काम करते हुए, इवन बात करते हुए भी ध्यान रखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं दूसरे के शूज पहन के देखता हूँ। मैं बस ये देखता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ, पढ़ने वाला जो है वो रीडर है, मैं एक बार को भूल जाता हूँ कि मैं राइटर हूँ, तो वो कैसे इसको लेगा, हाउ विल ही टेक इट, कैसा उसको लगेगा। तो वो बस ध्यान रखता हूँ मैं, तो बेसिक यही है मेरा फन। इसके अलावा एक दूसरी बात अगर मैं देखूं कि मैं क्या ध्यान रखता हूँ, तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मेरी लैंग्वेज ऐसी हो जो मासिस की लैंग्वेज हो, जो ज्यादा लोग सुन। क्योंकि देखो, मैं सिंपल सा फंडा है मेरा इसमें भी, आप तो मार्केटिंग गुरु हैं। सिंपल सा फंडा मेरा ये है कि मान लो मैंने कोई बुक लिखी, पहले तो मैं उसको डायरी में या इंटरनेट या मैंने किसी ऐप पे या जो भी आजकल टूल्स आते हैं उन पे मैंने लिखा, लैपटॉप पे लिखा, कोई भी बुक लिखी, कविता लिखी, कहानी लिखी, नॉवेल लिखा, नॉन फिक्शन लिखा, द मोमेंट आई डिसाइड टू गेट इट पब्लिश्ड, या तो मैंने उसको डायरी में ही रखूं, डायरी के बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है, लैपटॉप पे ही पड़ा रहे, वहीं पे वो दम तोड़ दे। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे इसे प्रकाशित करना है, प्रकाश में लाना है, दुनिया के सामने लाना है, तो फिर आपको
कोशिश करनी चाहिए कि जब वो सामने आए तो उसे जब दुनिया के सामने ला ही रहे हो, पब्लिक डोमेन में ला ही रहे हो, तो क्यों ना ज्यादा लोग पढ़ें उसको, क्यों ना उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दूसरी बात जो मैं ध्यान रखता हूँ वो है कि हमारी जो लैंग्वेज हो, जो हम एक्सप्रेस करें उस बुक को, उसकी जो लैंग्वेज हो वो मासेस तक पहुंचने वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। और इसी में आपका वो मार्केटिंग का कंसेप्ट भी आता है कि वाई मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी इज रेलेवेंट फॉर अ बुक और एनीथिंग वट एवर यू डू। अगर आपने डिसाइड किया है कि इसको पब्लिक डोमेन में लाना है, अगर पब्लिक डोमेन में नहीं लाना है तो फिर तो इट्स फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन, तो आप लिखो, फिर क्यों पब्लिश करते हो उसको। ठीक बात है। अच्छा, पढ़ने की जो, चूंकि फिक्शन राइटिंग की भी पीछे बात है, ये थोड़ा सा हल्का सा कंट्रोवर्शियल अपने साहित्य के लोगों में हो सकता है सवाल, लेकिन फिक्शन के दौर में जब हमने बात की, हम प्रेमचंद और उनकी बात करें, जो अभी के राइटर्स हैं, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ कि मैं ही हूँ, तो हम जैसे राइटर्स के लिए जो पॉपुलर हो जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए अक्सर विद्यार्थियों को हतोत्साहित किया जाता है, और विद्यार्थियों को मजा इसी पढ़ने में आता है। तो ये और आप और मैं भी उनको भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम प्रेमचंद ही पढ़ो। तो ये जो है, इस बारे में आप कैसे देखते हैं कि क्या कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या इन चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए, जहां से इंफॉर्मेशन मिल पढ़ना? देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है। जो लोग डिस्करेज करते हैं यंग राइटर्स को पढ़ने के लिए, उनके अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, कुछ स्वार्थ हैं, शायद इसलिए वो ऐसा करते होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो, जैसे मैं तो खुद हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमफिल किया है हिंदी लिटरेचर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, नेट जेआरएफ किया हुआ है। तो मैंने क्लासिक लिटरेचर भी, क्लासिकल जो है हिंदी का, वो पढ़ा हुआ है काफी हद तक। और तो बेसिकली क्या है कि दोनों में विरोध नहीं है, देयर इज नो विरोध बिटवीन प्रेमचंद एंड नवीन चौधरी, है ना। आपको प्रेमचंद को पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि कई बार यंग राइटर्स, जैसे हम जैसे यंग राइटर्स ने बहुत अच्छा, अपना तो बेबी सबको ही अच्छा लगता है, तो मैंने कोई बुक लिखी, मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है, पर व्हेन यू रीड प्रेमचंद देन यू रियलाइज कि भाई आ, वो उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, इतना तो हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। वो रियलाइज करने के लिए भी उनको पढ़ना जरूरी है। कविता लिख दी, सोच रहे हैं मैं महान कविता लिख दी, मैं फिर आप निराला को पढ़ते हो तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, अरे भाई ये तो मैंने तो बेकार सी कविता लिखी। तो ये रियलाइज करना भी जरूरी है, इसलिए क्लासिकल कहते हैं ना, कि इसीलिए मतलब जो एक स्टैंडर्ड है, जैसे इंग्लिश पढ़ी और शेक्सपियर नहीं पढ़ा तो फिर गड़बड़ है कुछ, है ना, इंग्लिश लिटरेचर में इसी तरह से है। तो उनको भी पढ़ना है और आपको भी पढ़ना है, हम जैसे लोगों को भी पढ़ लेना है, ये देखने के लिए कि आजकल का ट्रेंड क्या है। क्योंकि वो लोग तो 50 साल पहले लिख चुके, 100 साल पहले लिख चुके, पर हमें आज के युवा क्या सोच रहा है उसके लिए यंग राइटर्स को पढ़ना बहुत जरूरी तो एक क्वेश्चन, चूंकि आप आईएएस बने, और आपने जो सबसे खास बात रही कि वो हिंदी मीडियम से, जिसके बारे में परसेप्शन है, तो उसको आपने तोड़ दिया कि हिंदी मीडियम से आके आप टॉप रैंक में आना, और जिसके बारे में मानते थे कि हिंदी है तो नहीं होगा, वो इंग्लिश से होगा। और कनक जो है हमारे साथ, जो मराठी भी जानती है, लेकिन सभी विद्यार्थी सभी भाषाएं नहीं, एक किसी एक भाषा में, मातृभाषा में शायद वो ज्यादा प्रोफिशिएंट उसके साथ, और ये हतोत्साहित तो हमेशा किया जाता है कि अंग्रेजी होगा तो आपका ज्यादा। हालांकि आपने उस मिथक को तोड़ा है, ऐसे और भी उदाहरण है, लेकिन फिर भी आपका अपना अनुभव क्या है कि मीडियम का असल में कितना ज्यादा महत्व, और विद्यार्थियों को कितना इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि मीडियम जो है वो चेंज। देखिए, अभी तो मीडियम का असर की तो ये बात है कि जिस भाषा में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। पर मीडियम बेसिकली आजकल चॉइस नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर कोई अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाई चॉइस अपने बच्चे को हिंदी या मराठी मीडियम में पढ़ा रहा हो। वो बात आज से 15 साल 20 साल पहले शायद हो सकता है कुछ लोग ऐसे रहे हों जिन्होंने बाई चॉइस वर्नैक्युलर लैंग्वेज मीडियम चूज किया हो। तो इसलिए लेट अस एक्सेप्ट दिस रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, जहाँ पे न केवल प्राइवेट स्कूल्स तो इंग्लिश में आ ही गए, सारे के सारे कॉन्वेंट हैं, प्राइवेट हैं, इवन कहीं तो कस्बों में बड़े बेकार बेकार से इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुल गए। पर अभी गवर्नमेंट ने भी अपने स्कूल्स को धीरे धीरे हिंदी या वर्नैक्युलर लैंग्वेज से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये तो होना ही है अब, और हो रहा है, इसमें आप हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और धीरे धीरे जो ज्ञान की भाषा है, अभी मैं मनोरंजन की भाषा की बात नहीं कर रहा, अभी मैं मीडिया की भाषा की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिनेमा की भाषा की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ज्ञान की भाषा की बात कर रहा हूँ।
ज्ञान की भाषा मतलब जो जिस भाषा में आप पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी करते हैं, जिस भाषा में कामकाज होता है। एक कंपनी में किस भाषा में कामकाज होता है बताइए? पूरे देश की सारी कंपनियों में इंग्लिश में कामकाज होता है, सारी। और गवर्नमेंट में भी काफ़ी हद तक इंग्लिश में कामकाज होता है। तो फिर इसलिए वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट, और इट्स बाउंड टू हैपन। हमें बस इतना करना है अब कि इस आंधी को तो हम अब नहीं रोक पाएंगे, लेकिन मनोरंजन की भाषा, साहित्य की भाषा, सिनेमा की भाषा, मीडिया की भाषा, विज्ञापन की भाषा, बाजार की भाषा, हंसने की भाषा, रोने की भाषा, वो हमारी मातृभाषा बनी रहे, वो ना चली जाए। बिल्कुल शानदार बात कही है। मुझे कई बार कोई हाल ही में किसी इवेंट में किसी ने मुझे यही पूछा, मैंने भी ये सवाल आप ही से पूछा था, ऐसा ही सवाल मुझे भी आया था कि आप अंग्रेजी पब्लिकेशन के साथ काम करते हैं, आप उसी में काम, सारा काम उसमें होता है और लिखते हिंदी में है। तो मेरा उसका जवाब यही था कि अंग्रेजी जो है मेरे काम करने की भाषा है, लेकिन जब मुझे दोस्तों गाली देनी होती है ना, वो मैं हिंदी में देता हूँ। तो वो जो प्यार है, गाली है, गुस्सा है, वो सबसे पहले हिंदी में निकलता है। वो एक व्हाट्सएप पे जोक भी बड़ा घूमता है कि किसी कोई अगर आपको हर्ट कर दे तो सबसे पहले जो मुंह से शब्द निकले वो जिस भाषा का होगा वही आपकी भाषा है। लेकिन ये आपने निशान जी बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि किसी भाषा से वो आपको विरोध करके नहीं चलेगा। जो भाषा आज काम की भाषा बन चुकी है वो तो है ही है, और जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है उस भाषा को कमतर भी नहीं मानो, अपने आप को उसमें एक्सप्रेस कर सकते। मैं अगर मुझे बहुत लंबा एक्सप्रेस करना है तो मैं निश्चित तौर पर हिंदी चाहूंगा। क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है, सवाल मेरे पास और भी थे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं जाते जाते जरूर पूछना चाहूंगा। क्योंकि आप काफी पढ़ते हैं, और जब आप पहले पढ़ा करते थे तब तो विद्यार्थी थे, साथ में अपने टाइम मैनेज कर रहे, कुछ करे कुछ इधर। अब आफ्टर बीइंग एन आईएएस आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और एक जो है, मुझे लगता है कि आईएएस का जो है वो लोग अलग देखते हैं, मुझे लगता है कॉर्पोरेट वालों की तरह उनका सिचुएशन है कि किसी भी टाइम आपको फोन आ जाएगा, कोई भी इमरजेंसी आ जाएगी और आपको काम पे लग जाना पड़ेगा। और हम लोग तो फिर भी कभी कभी स्विच ऑफ कर लेते हैं रात को फोन, आप वो भी नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम में जब आपका ये पूरा शेड्यूल इतना बिजी है, तो क्या अभी भी आप किताबें पढ़ते हैं, और कैसे उसके लिए कैसे टाइम निकालते हैं शेड्यूल? देखिए, लाइफ में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी थोड़ी चेंज होती हैं। जैसे जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे पास एक ही टारगेट था कि भाई पढ़ाई करके आगे करके कुछ बनना है। अब आप करियर हो गया, सेटल हो गए, प्लस आपकी शादी हो गई और आपकी फैमिली बढ़ गई, आप यू हैव ए बेबी, तो थोड़ा फैमिली लाइफ का भी टाइम बढ़ता है, तो उससे बाकी चीज़ों का टाइम कम होता है, सब पे कटौती होती है। ऐसी नौकरी इस तरह की हो गई कि उसमें कोई टाइम का पता नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी पहली प्रायोरिटी, शुरू की दो प्रायोरिटीज हमारी फैमिली और नौकरी हो जाती है। फिर तीसरी लास्ट में बचती है हमारी हॉबीज। तो उस तीसरी प्रायोरिटी का नंबर रोज भी नहीं आ पाता, कभी रोज आएगा तो ज्यादा ज्यादा आधा एक घंटा, अदरवाइज वीकेंड पे ही उसका नंबर आता है। अब उसमें सारी आ गई आपकी, बुक्स भी हैं, ट्रैवलिंग भी है, आपको टूरिज्म का घूमने का शौक है, म्यूजिक का शौक है, आपको मूवीज देखने का शौक है, सोशलाइजिंग का शौक है, गप्पे मारने का शौक है, जैसे हमारे नवीन जी को बड़ा शौक है गप मारने का। बहुत है। तो जो भी आपकी हॉबीज है वो आपकी जनरली वीकेंड पे ही प्रकट होती है। तो यही चीज है कि अगर मैं अपने को देखूं तो मैं खुद बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ। ऐसे लग रहा है आपको कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि हमारी जो टॉप टू प्रायोरिटीज हैं वो जब हमें टाइम देती हैं, तब हम किसी तरह थर्ड प्रायोरिटी के लिए टाइम निकालते हैं। और राइटिंग भी मेरा तो थर्ड में ही आता है, क्योंकि फर्स्ट वन और टू है जो इग्नोर नहीं की जा सकती। अगर आप फैमिली को इग्नोर करोगे तो फैमिली खतरे में पड़ जाएगी, गृहस्थी आपकी। और अगर आप नौकरी को इग्नोर करोगे तो आपकी रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको उन दोनों को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, कोई स्कोप ही नहीं है। इसी में आपको जैसे तैसे लड़ाई चलती है, और जिंदगी भरी लड़ाई चलने वाली है। पर ये बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी लड़ाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें जहां भी हमें टाइम मिलता है हम थोड़ा सा वक्त चुरा के और अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपके पास जब 2 बजे स्टार्ट हुआ है सेशन, और मैं सुबह 10:30 से 1:30 तक मैंने एक जगह जयपुर में कहीं जाकर के एक आर्टिजन के पास बैठ करके ब्लॉक मेकिंग, जो वुडन ब्लॉक मेकिंग होती है जिससे फिर बाद में छप के वो टेक्सटाइल पे छापा जाता है उसको, वो बनाना मैंने बनाने का एक्सपीरियंस करके आया हूँ। आर्ट एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको। तो थैंक यू निशान जी। जो मैं समराइज करूं जो सारी आज डिस्कशन है, कि आपको कहीं भी सक्सेस पाना है, आप सिर्फ एक लीग पे काम नहीं चलेगा, आपको डाइवर्सिफाई होना है। हमने आज पढ़ाई के माध्यम से पढ़ने के बारे में स्पेशली बात की है, लेकिन आप निशान जी के बाकी आंसर्स को भी समझे तो सिर्फ पढ़ने की ही बात नहीं है। इन एवरीथिंग यू नीड टू डाइवर्सिफाई, तभी आपकी जो डेवलपमेंट है वो और होगी, और आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कर पाएंगे। बाकी प्रायोरिटाइज आपको लाइफ को करना है,
प्रायोरिटाइज करके और सारी चीजों की किसी के बीच में जगह बनानी। थैंक यू वेरी मच निशान जी, बड़ा मजा आया बात करके, और मुझे लग रहा है हम दोनों को तो खैर बहुत मजा आया एक दूसरे से बात करके, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो सुना आपको भी पसंद आया होगा। बाई चांस आपको ना आया हो तो भी ये बात ना बाहर जाके नहीं, बाहर जाके कहना करे यार दोनों लोग कमाल थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी उन्होंने। शुक्रिया आपका। बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और होप हमने कनक महाले जी को ज्यादा बोर नहीं किया और अपने जो ऑडियंस है उनको ज्यादा बोर नहीं किया। नो और सर, बिल्कुल भी बोर नहीं किया, बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। At the end, I would like to thank Mr. Nishant Jain and Mr. Naveen Chaudhary for joining us today. We wish we get to hear you both again and be equally enlightened as we all are today. And for me, dear massive audience, I am sure that after witnessing this wonderful conversation, you all are going to take home an enriched version of yourself, just as I will. Thank you for joining us today, sir and ma'am. Sir, until I see you again, this is Kanak Mahalle signing off. Welcome to Rai Soni Group, a vision beyond.